Hi everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we will do the sixth chapter of class 8th NCERT. The name of the chapter is Human Resources. These are the topics we will cover in this lecture. Human resource, distribution of population, density of population, factors affecting distribution of population, population change, migration and emigration, patterns of population change, population composition and population pyramid. First topic is human resources. People are a nation's greatest resource. जो people होते हैं वो किसी भी nation की greatest resource होती है. Nature's bounty become significant only when people find it useful. जो नेचर का गिफ्ट हमको दिया हुआ है वो तब सिग्निफिकेंट होता है जब पीपल उसको यूजफुल बनाते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग. इट इज पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न दैम इनटू रिसोर्सेज. पीपल होते हैं जो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग एंड अपनी एबिलिटीज से उन चीज़ों को यूजफुल बनाते हैं, उन चीज़ों को रिसोर्स बनाते हैं. Hence, human resource is the ultimate resource. तो human resources जो है वो एक ultimate resource है. Healthy, educated and motivated people develop resources as per their requirement. जो healthy, educated and motivated people होते हैं वो develop करते हैं resources को as per their requirement. Human resources like other resources are not equally distributed over the world. जो human resources होते हैं like other resources are not equally distributed over the world. They differ in their educational level. वो differ करते हैं educational level में, age में and sex में. Facts. The Government of India has a Ministry of Human Resource Development. Government of India के अंडर एक मिनिस्ट्री है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की. द मिनिस्ट्री वॉज क्रिएटेड इन 1985. ये मिनिस्ट्री को क्रिएट किया गया था 1985 में विद एन एम टू इम्प्रूव पीपल्स स्किल्स. इम्प्रूव करने के लिए पीपल्स की स्किल्स को. दिस जस्ट शोज हाउ इम्पॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री. ये शो करता है कि जो पीपल है वो कितने इम्पॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन. जो वे है जिसमें पीपल स्प्रेड करते हैं अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन. उसको पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है. More than 90% of the world's population lives in about 30% of the land surface. जो more than 90% population है वर्ल्ड की वो 30% जो लैंड का सरफेस है सिर्फ उस पे रहते हैं. Almost 3/4 of the world people live in two continents, Asia and Africa. Almost जो 3/4 वर्ल्ड के पीपल है वो रहते हैं 2 कॉन्टिनेंट्स में, एशिया एंड अफ्रीका में. 60% of the world's people stay in just 10 countries. और जो 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इन 10 कंट्रीज में रहती है. वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना जिसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं, फिर इंडिया, फिर यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान. अब पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. Population density is the number of people living in a unit area of the earth surface. जो population density है उसको define किया गया है as the number of people living in a unit area. जो number of people रहते हैं किसी भी एक unit area में earth surface के. It is normally expressed as per square kilometer. इसको express किया गया है as per square kilometer. The average density of population in the whole world is 51 persons per square kilometer. जो average density है population की in the whole world वो कितनी है? 51 persons per square kilometer. Facts. Average density of population in India is 382 persons per square kilometer. जो average density है population की इंडिया में वो है 382 persons per square kilometer. Next topic है factors affecting distribution of population. जोग्राफिकल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? जैसे टोपोग्राफी हो गई, क्लाइमेट, सोयल, वाटर, मिनरल्स, ये सब अफेक्ट करते हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा अर्थ पे. फिर है सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. उसमें सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक ये सब फैक्टर्स है.
तो इसमें जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है उसमें पहला है टोपोग्राफी, वो पढ़ेंगे. पीपल ऑलवेज प्रीफर टू लिव ऑन प्लेन्स रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज. जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं रहना प्लेन एरिया में रादर देन माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज, बिकॉज दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर फार्मिंग. क्योंकि ये जो एरियाज होते हैं वो सुटेबल रहते हैं फार्मिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज के लिए. द गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड. और जो गंगा प्लेन है इंडिया में वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वर्ल्ड का. वाइल माउंटेन्स लाइक एंडीज, अल्प्स एंड हिमालयाज आर स्पार्सली पॉपुलेटेड. और जो माउंटेन एरिया है जैसे कि एंडीज, अल्प्स एंड हिमालयाज वो स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं. फिर है क्लाइमेट, वो अफेक्ट करता है. पीपल यूजुअली अवॉइड एक्सट्रीम क्लाइमेट. जो पीपल होते हैं वो यूजुअली अवॉइड करते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को दैट आर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, लाइक सहारा डेजर्ट, पोलर रीजन्स ऑफ रशिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका. थर्ड है सॉइल. फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइड सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. जो फर्टाइल सॉइल होती है वो प्रोवाइड करती है सुटेबल लैंड एग्रीकल्चर के लिए, इसलिए पीपल स्टे करते हैं मोस्टली ऐसे एरियाज में. फिर वाटर भी एक फैक्टर है. पीपल प्रीफर टू लिव इन द एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज इजीली अवेलेबल. पीपल प्रीफर करते हैं ऐसे एरिया में रहने के लिए जहाँ पे वाटर अवेलेबल हो इजीली. फिर है मिनरल्स. एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट आर मोर पॉपुलेटेड. जो एरिया जिनमें मिनरल डिपॉजिट होते हैं वो मोर पॉपुलेटेड रहते हैं. डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडिल ईस्ट लेड टू सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज. मिनरल्स जो हैं उनकी वजह से भी अफेक्ट होता है. जो डायमंड माइन है साउथ अफ्रीका की, और डिस्कवरी हुई थी ऑयल की मिडिल ईस्ट में, उसने लेड किया सेटलिंग ऑफ पीपल इन दीज एरियाज. फिर है सोशल, वो भी एक फैक्टर होता है. एरियाज ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड. जिन एरियाज में हाउस फैसिलिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं वो एरिया मोर डेंसली पॉपुलेटेड रहते हैं. फिर है कल्चरल. प्लेसेस विद रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल. प्लेसेस जहाँ पे जो रिलीजन या फिर कल्चरल सिग्निफिकेंस जहाँ का होता है वो अट्रैक्ट करता है पीपल को. फिर है इकोनॉमिक. इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू दीज एरियाज. तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल अट्रैक्ट होते हैं इन एरियाज की तरफ. नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन चेंज. द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. जो पॉपुलेशन चेंज होता है रिफर करता है चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. एक स्पेसिफिक टाइम में जो नंबर ऑफ पीपल चेंज होते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में. द होल वर्ल्ड हैज नॉट बीन स्टेबल. जो होल वर्ल्ड है वो स्टेबल नहीं है. इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है. This is actually due to changes in the number of births and death. तो ये किसकी वजह से होता है, जो चेंज होता रहता है नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स में. बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट. जो बर्थ होता है उसको यूजुअली मेजर किया जाता है बर्थ रेट से. दैट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल. डेथ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट. और जो डेथ्स होता है उसको मेजर किया जाता है यूज करके डेथ रेट को. दैट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल. फिर है माइग्रेशन. माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. जो माइग्रेशन होता है वो मूवमेंट होता है पीपल का इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. बर्थ्स एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज. जो बर्थ और डेथ होता है वो नेचुरल कोज होता है पॉपुलेशन चेंज का. द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट. जो डिफरेंस होता है बर्थ एंड डेथ रेट में किसी भी कंट्री का उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं. The population increase in the world is mainly due to rapid increase in the natural growth rate. जो पॉपुलेशन इंक्रीज होता है किस वर्ल्ड में मेनली वो किससे रहता है? रैपिड जो इंक्रीज होता है नेचुरल ग्रोथ रेट में. फैक्ट्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है?
लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है नंबर ऑफ ईयर्स जो कि कोई भी एक एवरेज पर्सन एक्सपेक्ट करता है जीने के लिए। फिर है इमिग्रेशन, व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ न्यू कंट्री। इमिग्रेशन होता है जब कोई पर्सन एंटर करता है किसी न्यू कंट्री में, और एमिग्रेशन होता है व्हेन अ पर्सन लीव्स अ कंट्री, जब कोई पर्सन लीव करता है किसी कंट्री को, उसको हम एमिग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंजेस। माइग्रेशन भी अनदर वे है जिसके थ्रू पॉपुलेशन साइज में चेंज होता है। पीपल में मूव विद इन अ कंट्री, पीपल मूव कर सकते हैं विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, पैटर्न क्या है पॉपुलेशन चेंज का? रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। जो रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो वेरी करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज राइजिंग रैपिडली, जो वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन है वो राइज कर रही है रैपिडली। नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, और हर कंट्री इस ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं कर रही है, किसी कंट्री में ज्यादा है तो किसी कंट्री में नहीं है। सम कंट्रीज लाइक कीनिया हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स, जो कीनिया जैसी कंट्री है उनमें हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट्स, ऐसी कंट्री में हाई बर्थ रेट होता है एंड हाई डेथ रेट होता है। नाउ विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन, और हेल्थ केयर जो है वो इम्प्रूव हुई है आजकल, तो डेथ रेट भी फॉल हुई है। फिर है पॉपुलेशन कंपोजिशन, पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन ऑफ ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल। जो पॉपुलेशन है वो वेरी करते हैं उनकी एज में, सेक्स, लिटरेसी लेवल में, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन एंड इनकम लेवल में। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर करता है टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, कि स्ट्रक्चर क्या है पॉपुलेशन का। द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प्स अस टू नो हाउ मैनी आर मेल्स और फीमेल्स। जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वो हेल्प करता है हमको अंडरस्टैंड करने में कि हाउ मैनी आर मेल्स एंड फीमेल्स, विच एज ग्रुप दे बिलोंग, और किस एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। हाउ एजुकेटेड दे आर, वो कितने एजुकेटेड है, एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड, और किस टाइप के वो ऑक्यूपेशन में एम्प्लॉयड है। व्हाट देयर इनकम लेवल्स, और उनकी इनकम लेवल क्या है, एंड हेल्थ कंडीशंस, और उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। The way of studying the population composition of a country is by looking at the population pyramid. जो वे है स्टडी करने का पॉपुलेशन कंपोजिशन को किसी भी कंट्री का, वो है by looking at the population pyramid. पॉपुलेशन पिरामिड जो है उससे हम समझ सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड, जिसको हम एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड शोज, तो पॉपुलेशन पिरामिड है वो क्या शो करता है, द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप्स, दैट इज 5 to 9 years, 10 to 14 years एटसेट्रा। तो जो टोटल पॉपुलेशन डिवाइड है वो उसमें वेरियस एज ग्रुप होते हैं, जैसे कि 5 से 9 साल तक, 10 से 14 साल तक। The percentage of total population subdivided into males and females, जो percentage है total population का वो subdivided है males and females में in each of those group। जो हमारा लेफ्ट साइड में है वो है मेल, राइट साइड में फीमेल शो कर रहा है ये ग्राफ, और ये है एज ग्रुप ईयर्स। लेफ्ट साइड में एज ग्रुप ईयर्स, इसमें 0 to 4 years, 5 to 9 years, 10 to 14 years, 15 to 19 years, इस एज ग्रुप में जितने पीपल है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं इस ग्राफ में परसेंटेज उनकी। फिर है द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पार्टिकुलर कंट्री। जो शेप है पॉपुलेशन पिरामिड की वो बताती है कि पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, किसी भी कंट्री में कितने लोग रह रहे हैं, किस एज ग्रुप में हैं, वो सब शो करता है। द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन आर शोन एट द बॉटम, जो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है वो उसको शो करते हैं बॉटम पे, एंड रिफ्लेक्ट करता है द लेवल ऑफ बर्थ, और वो जो बॉटम होता है पिरामिड का वो रिफ्लेक्ट करता है लेवल क्या है बर्थ का।
The size of the top shows the number of aged people and reflected the number of deaths. जो टॉप है पिरामिड का वो शो करता है एजड पीपल को एंड रिफ्लेक्टेड द नंबर ऑफ डेथ्स और रिफ्लेक्ट करता है नंबर ऑफ डेथ्स को. द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन अ कंट्री. और जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो और क्या बताता है कि कितने डिपेंडेंट है किसी भी कंट्री में. मतलब कि जो हमारी मिडिल एज ग्रुप जो होता है उस पे डिपेंड रहते हैं बच्चे और बूढ़े दोनों. देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स. टू ग्रुप्स है डिपेंडेंट्स के. यंग डिपेंडेंट्स जो एज होता है 15 ईयर्स तक एंड एल्डरली डिपेंडेंट्स जो होते हैं जिनकी एज रहती है 65 के अबव. दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव. और जो मिडिल वाले होते हैं वो इकोनॉमिकली एक्टिव रहते हैं. ये दोनों ग्रुप उन पे डिपेंड रहते हैं. द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टूवर्ड्स द टॉप. Thank you everyone. If you like our video, you may follow us on these platforms and subscribe us on YouTube.